Everyone is having own experience to explain the trigger. But my concern says, if you go for building the basic block and basic logic, you can make a several triggers. There is a table and there is a trigger. And there is a stored a procedure. You can write a logic in both. But the main difference, I cannot execute a trigger explicitly, but I can call procedure explicitly. Before making a trigger, there is only single concept. There is a client called programmer. Don't write the client word. There is a programmer, and there is a man who knows base database concepts. छोटी सी बात पर उसको स्ट्राइक करने की बात. There is a programmer wanna call trigger, or there is a programmer wanna call procedure. Why he wants to call a trigger and procedure? In this table, there are several columns. So uncle, he calls procedure explicitly by exec. बात समझना, छोटी सी बात, और बीटेक को ज्यादा समझाएगा बीटेक वाले बच्चे. ये भी देखा. They can write easily trigger. It's my experience. अगर सुनोगे ठीक से तो. Programmer has made the procedure. तमाशा होगा. बहुत टफ इनको पढ़ाना यार, बहुत टफ. हमें नहीं बोलता कुछ किसी. अब गेट मत खोलो प्लीज यार. प्लीज डोंट ओपन द गेट. He is the same programmer. He is writing a logic. मैं आपका ऑर्डिनेटिव ट्रिगर का फंडा ऐसा कर दूंगा, साला को ट्रिगर के नाम से खौफ खत्म हो जाएगा. ये मेरी गारंटी है. एमसी का मैं नहीं जानता, बीटेक का जानता. बीए बीकॉम भी हो सकते, चक्कर ये. There is a logic I have written in procedure. Because same logic I can write in a trigger. I can write the same logic of harmonic series. I am recalling my group. I am writing a same logic in constructor. I can writing a same logic in what? Member function. But I have to call the function by the object, and then I have write only what? Object. They can call the what? Constructor. But one is a very major and charming difference. Constructor never returns, but function can return. So similarly, uncle, proc can return or trigger cannot return. So Javed has taught me trigger is working as a constructor. Now, if I write any logic, it might be input,
might be output, might be return, or basic whatever. I write my logic in procedure. I wanna call exec by the name of the procedure. Then the value 1, 2, 3. These three value goes to procedure variable. These three value goes to procedure variable, and we can apply if conditions. We can apply if conditions. It means Pratik, if I wanna pass 4 argument, I have to pass 4 data to the procedure, and in a procedure I wanna pass 4 data to the procedure, and in a procedure I have 4 variables to retrieve those what data. I can apply if conditions, whatever you can apply. Like I write create from y against to my table. I write angle procedure against to my trigger, against to my table. ABC. I declare 3 variables. A1, forget the data type, please keep in mind. A2, A3. So we have 3 variables. Then I write here as but you will not find, Prashant, any procedure which can insert a data into database table. I haven't find so far. You can ask to compose even though. Before inserting any data to procedure, I want to check data is available in table or not. If data is available, I can flash the message. Okay? Manish, you can write a trigger when you fill the procedure. Then you can write a procedure. I mean trigger. Then I'm touching the heart of procedure and converting into what? Trigger. Man knows better constructor, he can really go for the running of functions. Now, so I wanna go for saving a record into table of database, but there is a short. Write a proc in table for a table where you can insert a data. It's a buffer. I start in my class initially like this. When a student comes to my center, I start teaching Edu.NET and move back to procedure. I make a procedure. Now I'm recalling maybe January month, it was a wrong procedure. How? अरे यार टफर. This procedure never be accepted. Never be accepted. Because if you write this procedure, now you pass data, programmer will pass a data. Exec, name of the procedure, the roll number 123, बच्चा का नाम P and बच्चा BTech. Can't you fill? If I pass this data, 123 goes to A1, similarly, don't waste time, and similarly, and insert into is done.
If same bachcha or different bachcha is calling a same procedure, he doesn't know better what is the last status of the data in that table. उस क्लास को याद करो, वो बिल्कुल गलत प्रोसीजर में बनाया था रश्मि, वो किसी काम का नहीं था बेटे। वो तुम्हारी पहली क्लास थी एडोडॉटनेट की, चलो सिखा दिया प्रोसीजर कम से कम क्या होते, चाहे विषय सिखाया जाए मैं सिखाऊं। But in a company level, those proc cannot be accepted. You can ask to compose on Saturday class. Why? You go to Shankar, he will be more senior person than anyone in this center. Why? If now this girl, Akansha, is willing to call a same procedure, she don't know what is the last record in that table. And roll number is a primary key. If he entered again this data, she don't know last data. आप देख लो बिल्कुल, इसको नहीं पता last data क्या है। ये क्या डाला 123 अपना नाम एक क्या MCO जी Edward she will get runtime exception. She will get runtime exception. Am I right? तो आप क्या करोगे? तो भाई बदतमीजी करोगे, ट्राई थ्रो कैच। आइए इडियट, आइए इडियट, आइए आ जाइए। क्या पढ़ाऊं, किसको पढ़ाऊं यहाँ पे यार, समय कबाड़े हैं कबाड़े। इनको मैनर है ना कट्सी है ना डिसिप्लिन। एक बेवकूफ को भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं गधे को पढ़ा रहा हूं, गधा भी नहीं। गधे भी डिसिप्लिन होते हैं, बेवकूफ मार डिसिप्लिन होते हैं। इडियट है इडियट। और क्लास में करे इनको भी देख के अक्ल नहीं आती बदतमीजों को। लास्ट नंबर जानने की जरूरत है। अंकल आपने बना दी प्रोसीजर, आपका स्टूडेंट, आपका प्रोग्राम, आप डेटाबेस के बंदे हो, आपने ये प्रोसीजर लिख दी। अब जरा झंकार को बोलना सुबह में, कल मॉर्निंग में, झंकार जी आप एक हमें इंसर्ट का प्रोसीजर लिख के दिखाइए, इतना ही बोलना उसको सुबह आकर। और संदीप कदम ने पढ़ा है, अरे गलत पढ़ाया है उसने, इसमें कंडीशन कहाँ है? ये प्रोसीजर कहाँ चेक कर रहा है? जिस आप रिकॉर्ड को डाल रहे हो वो अवेलेबल है या नहीं? ये तो बड़ा धोखेबाज प्रोसीजर है। दिस विल गिव यू एक्सेप्शन। तो ऐसे बदतमीज प्रोसीजर को कॉल करने के लिए हमें ऑलवेज ट्राई थ्रो कैच लगाना पड़ेगा। अरे बोलो यार, देखो ना अंकल, देखो ना। और अचानक बेटे बात आ जाएगी ट्रिगर के, अचानक मतलब माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट रखो। और 2 क्लास और चलेगा ट्रिगर का, 2 क्लास और। आइए आइए इडियट, आइए आप आइए। आप तो मेरे स्टूडेंट बिल्कुल हो ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं बनते। मन करता है निकाल दूं, वो भी मन नहीं करता। छोड़ो, हमें दीप्ति की बात सुनता हूं, क्या करूं? बालक तरंग आप सुनिए ठीक से। मनीष, मैं कब आ जाऊंगा ट्रिगर का, मेरे को पकड़ नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे मेरे को। पहले मेरी प्रॉब्लम को समझो। तो हमने शुरुआत करी पढ़ना प्रोसीजर की, लॉजिक लिखना था। हमने खूब पढ़ा, पहले कंस्ट्रक्टर, एक प्रोग्रामर पहले पढ़ाता है कंस्ट्रक्टर, बोलो बाद में क्या पढ़ाता है, बोलो फंक्शन, कि ऑब्जेक्ट की बनेगी तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पर कभी ने पहले पढ़ा दी फंक्शन, बाद में कंस्ट्रक्टर, कल से मैं नहीं जाऊंगा फिर। तो जैसी बनी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आई कैन कॉल।
अच्छा, रुक, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, हम ट्रिगर में डेटा कैसे पास करें? सुना है ट्रिगर भी डेटा इंटीग्रिटी करता है, बोलो कौन? तो मैं अपना डेटा किसको दूंगा? बोलो ट्रिगर को दूंगा, और ट्रिगर चेक करेगा, बोलो किससे? टेबल में ना है, रोल बैक हो जाओ। तो ये सिखा दो, बस एक टेक्निक सिखा दो, आप ट्रिगर में डेटा कैसे पास करते हो। सब मेरा काम हो गया, अब भागो यहां से। क्यों? उसे पता है हम प्रोसीजर वैल्यू वेरिएबल, हम प्रोसीजर में डेटा कैसे पास करते हैं। तो वो प्रोग्रामर जावेद हमें डेटाबेस बिल्कुल नहीं पढ़ाया, क्या लॉजिक पढ़ाई बंदे ने। और साला मास्टर लगाएगा डेटाबेस का 100 प्रोग्राम दिखा देगा, बनाओ जी भागो। इसको मुझे डर लगता है काम्बोज से, वो उसकी बातों में ज्यादा कहीं डेटाबेस की ज्यादा महक ना आ जाए, मेरे बच्चे लॉजिकली सब मिस कर जाए। सब बस आप सिखा दो ट्रिगर में डेटा कैसे पास होता है, बस मेरा काम खत्म होगा। साले कोई में ट्रैप कर लेंगे। अच्छा, आपको मैंने सिखा दिया प्रोसीजर में डेटा कैसे पास होता है, बस अंतर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ये एक्सप्लिसिटली कॉल होगा। सब दिखाओ भाई, हमने पहले डेटा देख लो। बंदा आया, मेरे साथ कोई गधा बंदा आया, ऐसे लिख दिया एट ऑफ 3 वेरिएबल देखा, आर डॉट वेस्ट टाइम, इंट एट ऑफ एसएन एंड थर्ड एससी केयर ऑफ 30, कुछ भी दे दो, एज insert into student values at the rate of r, at the rate of sn, at the rate of sc। अंकल ये बिल्कुल गलत हमने लिखा है प्रोसीजर, ये इतना बदतमीज प्रोसीजर आपको हर बार धोखा देगा। आप कल ही झंकार को दिखाना था सुबह, कामोज को मत दिखाना, झंकार को दिखाना। क्यों? प्रोग्रामर भी है और डेटाबेस भी जानता है, और काम्बोज ज्यादा डेटाबेस जानता है तो कम जानता है डॉट नेट। हो गया अंकल? चलो, आपने कहा जी प्रतीक को भाई ऐसा है, आप इसको फ्रंट एंड से कॉल करो, बट एसक्यूएल कमांड, हम एसक्यूएल कमांड से कॉल नहीं करेंगे, लाखों बार करा चुके हैं हम, राइट? सुन रहे मेरी बात करो? अरे हर को मैंने करा रखा है, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, इवन यू आल्सो। एग्जैक्ट ABCA, और यहां से हमने पास किया, हमें क्या पता, आई डोंट नो, मैंने एक पास किया, हमने पास किया PRA, हमें क्या पता, हमने पास किया। बच्चे का कोर्स क्या कर रहा है वो, ये कर, साला क्या आ गया, शिट, कहाँ तमीज ने क्या बना दी प्रोसीजर। बुला कहते संदीप को यहाँ, कुछ नहीं आता करेगा। इसको अगर मैं कॉल करूंगा, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा और ट्राई एंड कैच में काम, इसलिए का एक्सेप्शन हैंडलिंग लाजवाब टॉपिक, C#। इसे जब भी अंकल कॉल करेंगे हमें ट्राई थ्रो कैच करना, ट्राई कैच करना पड़ेगा। जहां से एक्सेप्शन है वहां से थ्रो होगा, थ्रो कहां जाएगा, सुटेबल कैच में जाएगा। कभी कभी अच्छी किस्मत है, ये क्या साला खेल लिया मैंने यार, साला कभी चलता है मत, कभी चलता ही नहीं है। दुखी का रखा है बदतमीज ने, साले हिला डुला चलता है गधा को, अब चलेगा दौड़ेगा। अच्छा, इसके ऊपर हाँ, टेबल का नाम कल था क्या? स्टार्ट 1 था ना, 2 बार 3 बार 1 था। फैन चलाना, ये वहाँ पे होगा नहीं।
बन गया जी अंकल? कुछ नहीं करना हैगा सेवा। हाँ, अच्छा प्रोसीजर है, मजा आ गया। लो अगला आया, हमें क्या पता यार तू चाहता क्या है? मैं तेरे प्रोसीजर को यहां से कॉल करूं? अच्छा, इंसर्ट इनटू कहां लिखा? बोलो प्रोसीजर में लिखा हुआ। से इसको पहले ठीक करो। सुन रहा है मेरी बात? इसको ठीक करो पहले से। करा चुके हैं बैच में, आपके सामने देखो। और नॉट कम बैक टू ट्रिगर। इसे इसको ठीक करो, खबरदार ऐसे लिखा उसके बाद तो क्लियर। पहले ऑल्टर, ये आपके हाथ से कीबोर्ड लेगा, माउस झनकार वो ठीक करेगा। और कौन सी क्लास है? एसक्यूएल कमांड और पैरामीटर जो भी आपने पढ़ रखा है, बस जो भी है अपना। ये तो कॉलिंग का डिक्लेयर की now he is writing a valid procedure by Shankar। कि मेरे उसके नॉलेज में बहुत कम का फासला रहता है। सेलेक्ट एट द रेट ऑफ दी। इसका बड़ा लंबा है यार। ये तो मालूम मुझे 15 का डेटा पास करना हो, मुझे 15 बोल के वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा, तो समझ आ रहा है मेरी को, उसको समझ में आ रहा है। इक्वल टू काउंट स्टार फ्रॉम स्टार्ट 1 वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू बोलो अरे बोलो if at the rate of r, so क्या है? t greater than 0 होता है तो रिकॉर्ड अवेलेबल है। अरे बोलो यार, begin and else begin what हम चुप, बात नहीं करेगा मुझसे, वाला याद करके नहीं बनाता। अब यहाँ पे ये इसके बिगिन का एंड बंद हुआ, इसके बिगिन का एंड। चलो ठीक है अंकल। तो ये वैल्यू में टी में क्या आ गया? जो ठीक है, बस एक दुविधा मन में चल रहा है मेरे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार्ट 1 में कौन सी कॉलम? सर अच्छा बात देख लिया। RNO है जी बालक, कोई दिक्कत पूछ लो मुझसे। बच्चों को बेटी ये सीखना है तो ट्रिगर में डेटा कैसे पास करेगा। सर भागो इसको, अब तो भागो यहाँ से, निकलो इस सेंटर से बाहर, तो मेरा काम हो गया। ट्रिगर में अगर डेटा आ गया, इफ लगाना आता है और ऑल बैक करना आता है, बोलो कौन कमिट करना आता है, राइट? टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। और मल्टीपल टेबल के बीच में कर लेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो वो भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, चिंता ना करो। ट्यूजडे को पहले एक टेबल तो सीखे। और बेटे यहाँ पे क्या करा मैंने, ये बना दी डिक्लेयर, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, डिक्लेयर आर इंट और सेट आर इज इक्वल टू बोलो कौन 0, ठीक है, और रिटर्न बोलो कौन, ठीक है। हमने इसमें हार्ड कोड फिक्स कर दी वैल्यू। इस गधे को उठाया, कंट्रोल सी, एक मिनट, कंट्रोल सी, और क्या कर दिया बोलो,
डिट्टो आपको ये लिख के दिखाएगा झंडा, डिट्टो। हाँ, प्रोग्रामर है, डेवलपर है, सब वेरिएबल का नाम सही लेगा वो। उसने बेटे बना ली बिजनेस लॉजिक। अरे साले 1 आया तो अब देखना, यहाँ देखना, ना ना यहाँ कुछ नहीं। हाँ, यहाँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, नहीं ऐसा नहीं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, सॉरी स्टैंड 1 लिख लो बालक, नहीं लिखो तो लिखो कदे, लिखो प्रैक्टिस होगी। हाँ बोलिए। 50 लिख लो, 100 लिख लो। हाँ मुझे डिलीट कराना है, डिलीट कराना तो जो आपने रिटर्न कराया मैं डिलीट लिख दूं, कुछ भी लिख दो। दो काम करेगा। हाँ, एल्स कर लो। लिखो, प्रैक्टिस होगी। क्या था? एट ऑफ आर, सेकंड क्या था? मुझे तो कॉफी बोलना है बच्चे को, कॉफी दे दो। मैं सोया हूँ 4:45 बजे, पढ़ता था, 10 बजे बैठा, 4:30 उठा। आज मैं सिर्फ 3 बजे एक समय तब मेरा दिमाग खराब कर रहा था, कुछ साल का खत्म किया बैठ के। हम बहुत सारे इतना वही पढ़ाएंगे, बहुत सारे इतना वही पढ़ाएंगे। क्या? आज मेल आया उनका कि ये डाटा जो है आपका SQL जान है आपकी, आत्मा है आपकी, मैं वही पढ़ाऊंगा। अब देख ले, समझ आ गया? F5 अब मैं S लगा दूं, डिलीट का, अरे यार बोलो, अपडेट का, क्या हो गया? कहाँ पे? लोकल वेरिएबल हो गया यार, चलेगा। नहीं। अच्छा वो ऊपर और क्या गलती है? ये तो नेवी कन्वेंशन नहीं फॉलो करते, ये दिक्कत आती है। नेवी कन्वेंशन फॉलो करते नहीं है, काम करता नहीं है। हो गया अंकल? अब देखिए कमाल देखिए। आपको बोलेगा अगर प्राइमरी की है भैया, मेरे पास कितना है बोलो? 0 आया, यस सेव हो। कैसे कॉल करेंगे? डिक्लेयर 3 लिखो करे, वहाँ पे चलो नीचे बहुत चैनल, वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस से लिखता है लोग। Exec name of the name of the variable t is equal to पूरा लॉजिक है यार। और दूंगा मतलब और दूंगा नोट में 1000 लाइन, कोई दिक्कत ना होगी मुझे। अब बेटा यहाँ से क्या पास किया? ये प्रोसीजर अंकल कॉल हो रहा है, वो टी को देगा, अगर 0 देगा तो मामला गड़बड़ है, हमारा राइट? अगर कुछ नहीं दिया तो ऐश हो गई नहीं। अब यहाँ पे क्या लगा दिया बोलो? 101। हमें क्या पता क्या है? वैसे बोलो बाद में कहाँ से कॉल करेंगे? बोलो फ्रंट एंड से। तो ये दिक्कत हो अंकल, ये दिखाना है आपको, कामों से अगर पर ये दिक्कत हो, सुनो प्रतीक, ये दिक्कत ऐसा ना कि आपका फ्रंट एंड बैक एंड अच्छा हो जाए और फ्रंट एंड से कॉलिंग छूट जाए। आप जो भी करो बैक एंड टू से फ्रंट एंड टू बैक एंड करो। हमें डेटाबेस का प्योर बंदा नहीं बनना, ये चक्कर हो जाएगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। हम जो भी करें उसको कहाँ से कॉल करें? फ्रंट एंड से।
सेकंड क्या है, कुछ भी नाम दे दो। हमें अंकल कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं ना। बस एक इशू है बेटे, जब डेटाबेस में एक्सेप्शन आएगा तो तुम कल तो ट्राई कैच मिला चले गए। तुमने क्या कहा कि तुम छोटे छोटे गलतियों को अपने से सुधार लो, डोंट गो फॉर वेटिंग फॉर द एक्सेप्शंस टू विकेट। तो बेटा फैन बंद करना बेटे। क्या गलती है जी? अच्छा हो गया। अब देखते सब पोल खुल जाएगा। प्रिंट सब पोल खुलेगा, चिंता ना करो। 0 अभी देखता हूं, मेरे भी यकीन ना करो। देखो स्टैंड बोल कौन था? 1 101 है, बदल दो, 1101 कर दो। 1 रो अफेक्टेड, दोबारा करो 0। नहीं है समझ में? साले कभी सुन ले करे, कभी भी आप डेट का लिखता है, कभी भी लिखता है डिलीट का। डिलीट करना है जी, डिलीट लो, आ जाओ। डिलीट करना है, एक काम कर, दोनों को निकाल दो। ये रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दिया। और क्या लिख दिया यहाँ पे? डिलीट। यहाँ नहीं लिखा, ऊपर लिखा जाएगा। क्यों करे? थप्पड़ खाएगा नलायक तो ढक्कन। नाक बोला कदा रीड फ्रॉम टेबल वेयर आ रहे ना था ना। क्यों? हाँ हाँ तो फिर कुछ ना कुछ तो चेंज किया जाए, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, झगड़े मत करो करे। तो फिर वही कोई ऊपर लिख क्या देखा? अगर हम डिलीट कब करेंगे? रिकॉर्ड अवेलेबल होगी तो ये 0 से क्या होगा? रिकॉर्ड नहीं मिली, 1 होगा तो रिकॉर्ड मिली, या 1 से ज्यादा बस जब मिलेगा तब डिलीट होगी। छोड़ दिया इसको। आप भी तो कर रहे हो। एल्स में आ जाएगा वो, इफ में नहीं जाएगा, फिर एल्स में आ जाएगा, एल्स से डिलीट कर देगा, फिर रिटर्न नहीं कर पाएगा। मेरे को चक्कर ही है, रिटर्न 0। रिटर्न करा दो। अरे यार यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है यार? ये है कि तुम्हें वो चेंज करोगे बस। तुमने क्या देखिए क्या बोला, क्या ऊपर कैसे करना पड़ेगा नालायक? ऊपर में भी क्यों चेंज करेंगे हम? अरे जब रिकॉर्ड एग्जिस्ट होगा तभी क्या लिखा है? तो ठीक है ना, मैं कुछ कह रहा था। एक है 0 बंद कर दो, साथ में 0 है तब डिलीट हो रहा है। तो ये 0 कर दोगे, रिकॉर्ड नहीं मिला, ठीक है, और रिकॉर्ड मिला तो वो अलग वैल्यू मिलेगी। देखो भाई, अगर 0 हो गया मतलब क्या हो गया? नहीं मिला। अरे यार दिमाग मत खराब करो। ठीक है, निकाल दी तू। ठीक है, D0 का मतलब क्या हुआ? उसको नहीं मिला तो क्या रिटर्न करेगा? 0 ना मिलेगा, मिल गया तो कहाँ आएगा? एल्स में डिलीट कर देगा। सुन रहा है मेरी बात को? तो भूल के अब इंसर्ट अपडेट डिलीट वो वाला मत लिखो जो आपको मैंने कराया था बैच में। अब सोचना है, अगर ये रोल नंबर 5 जगह होता तो, अगर रोल नंबर बेटे 5 जगह होता, अगर सर एक जगह से डिलीट करते 5 जगह से होना चाहिए था। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सर्टिफिकेट सिखाओ जल्दी, सर्टिफिकेट सिखाओ। ये है समझ में? अगर मास्टर टेबल से हटा दिया, बच्चे का नाम कट गया एबीएस से, उसका सारा नाम हर जगह से हटाओ, लाइब्रेरी से, कॉलेज से, क्लास से, हर जगह से हटाओ, कैंटीन से। प्राइमरी नंबर तो हम ऑटोमेटिक लेते हैं, वो लेता रहता है।
सुन कंपाइल हो गया? ऊपर है ये यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन है, आरएन इंट लिखा ना उसके नीचे अटैच, नीचे वाली लाइन, नीचे वाला सब AR लिखा, AR30। अब अपडेट कर लेगा जी बालक? तो प्राइमरी नंबर तो हम लोग ऑटोमेटिक लेते हैं, अपने आप ले लेते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं। तो उस समय तो ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं। हाँ क्रिएट होगा सर, ये प्रॉप का नाम ही चेंज हो गया। हो गया? क्रिएट प्रॉप नाम चेंज हो गया। नाम भी तो मस्त है ये। हो गया? ठीक है जी, इस तरह बना लो, बना दो यार। SPX बटन होगा, डिलीट होगा। अब करा चुके हैं पैरामीटर डायरेक्शन रिटर्न वैल्यू कॉपी खोल के देखो, ये कराया कि नहीं? अब बोलेगा नहीं कराया सर आपने। देख लीजिए मतलब क्या हो गया, डिलीट नहीं हुआ। और अब देखो अब इसके बाद में चल जाता, एक्सेप्शन आ गया, रन टाइम एक्सेप्शन, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसको कैसे लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने मिनिमाइज किया एक्सेप्शन को। बोलो क्या भाई, इफ कंडीशन। तो वो जो बनाया था वो सर जान के आप गलती कर रहे हो, मुझे लग रहा है वो देख कर आप इंटेंशनली गलती कर रहे हो सर, बुरा मत मानो। अंकल जब मैं थक जाता हूँ ना, मैं सीधा होता मैं नहीं पढ़ाऊँ। आप मेरी कितनी भी शिकायत करो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो। कल वही हुआ था, कल मैंने कोई बहस पढ़ाई थी, मैं काफ़ी बोल गया उसमें 3 से 5 वाले में, ऐसे मॉड्यूल लॉग, मुझे काफ़ी सोचना पड़ गया बोलने के चक्कर में, थक गया, नहीं लिया गया शाम तक। पढ़ाऊंगा तो मन से नहीं पढ़ाऊंगा। अब आ जाओ, ठीक, अब देख लिया बालक, सबको निकालो, मिनिमाइज करो, लॉजिक पे आओ। इसको हटाओ, इसको हटाओ, सारा हटाओ। इसका देखो, देख लिया कैसे आर्गुमेंट में डेटा पास होता है और कैसे काम करता है। अभी आफ्टर बिफोर सब बातें मत करना, सुनो टाइप्स ऑफ ट्रिगर क्या है, सुन रहे मेरी बात को, सारे फंडे पास कर दूंगा, चिंता ना करो। अंकल 3 मैथमेटिक्स देखिए, अब 3 मैथमेटिक्स, एक प्रोग्रामर, एक बीच का बंदा, बोलो कौन, जो पहले प्रोसीजर को हटाया, ट्रिगर को लाया, और एक टेबल। ये इसको इससे जोड़ दीजिए, ये इसको देगा। इससे पहले भी मेरा प्रॉक था, एंड प्रॉक के पास भी क्या है बोलो, देयर इज अ लॉजिक। तो प्रॉक बिफोर गिविंग टेबल टू, बिफोर गिविंग अ डेटा टू टेबल बाय द प्रॉक हैव चेक्ड डेटा इज अवेलेबल और नॉट बाय एक कंडीशन। अब सुनना बेटे प्रशांत, अपने भाई से पूछना ओरेकल वाले से, अगर बेटे प्रोग्रामर, इसका भाई जो अपना सगा भाई जिस ओरेकल में है, प्रशांत का बड़ा भाई, वो टॉप फर्स्ट कंपनी ओरेकल कॉर्पोरेशन, तो फ्रंट एंड का डेटा अगर ट्रिगर के पास गया, सुन, और ट्रिगर किसको देगा, चेक करने के बाद टेबल को देगा, टेबल को यार, इसको छोड़ दिया, नहीं समझ आया, बंदे बना के देखिए प्रोसीजर कैसे होता है। तो बेटा ट्रिगर के 2 डेफिनेशन याद करें, ट्रिगर डू वैलिडेशन ऑफ डेटा and also maintain the what, referential integrity। बट ये बोलना गलत है कि बाई ट्रिगर आई कैन ओनली गो फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये कोई जरूरी नहीं। टेबल बेटे सिंगल टेबल के ट्रिगर सिंगल टेबल के ऊपर भी काम कर सकता है, और टेबल ट्रिगर क्या बोलो, मल्टीपल टेबल के ऊपर काम कर सकता है। अगर मल्टीपल टेबल ज्वाइनिंग के ऊपर काम कर रहा है, बोलो क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी।
और लाइब्रेरी का मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्यों? आपका नाम वहाँ भी है, वहाँ भी है, कॉलेज में भी है, रजिस्ट्रार के पास भी है, इसके पास भी, उसके पास भी है। बड़े लफड़े होते हैं मेंबरशिप वापस लेने में। बोल दूं, जब फ्रंट एंड ट्रिगर कॉल करेगा, क्यों? डेटा देने के लिए। देखो देखो देखो, आ जाओ, आओ बालक, अब फिर बनाओ साले प्रोसीजर, फिर बनाओ जानवर, क्रिएट, फिर से बनाओ। अब देखो कमाल, देखो क्रिएट फ्रॉक x1 एज बिगिन। इससे प्रतीक बेटे क्या बोलोगे? इस ऐसा प्रोसीजर जो मुझसे कोई इनपुट नहीं ले रहा है। अरे बोलो यार, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं है। ये सर, ये फंक्शन है, फंक्शन का आर्गुमेंट नहीं है। अब लो अंकल, अब यहां पे आप सिंपल लिख दो प्रिंट एंड यू कॉल फ्रॉम हियर exec x1 कंपाइल f5 x1 कॉल हो गया जी। exec और इसने इसको बुलाया, डेटा पास नहीं किया। देख, क्लास टेस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंट। अरे बोलो, डेटा पास करना है गुरुजी, यहां पे क्या करो? वेरिएबल। सब जल्दी बोलो, सर जल्दी बोलो प्लीज, क्या आप चाह रहे हो? लो करिए, क्रिएट ट्रिगर। चलो ट्रिगर का नजर रखना, करिए क्रिएट ट्रिगर x2 हाँ कोई दिक्कत नहीं। ऑन स्टार्ट 1 फॉर इंसर्ट एज बिगिन ऐसा कुछ नहीं है। फैन ऑन करो, फैन ऑन करो, मैसेज शो करेंगे ना, तो वो इंसर्ट करेगा तो कुछ ना कुछ शो करेगा। लो दिखा लो। लो कॉल करो इनटू। अच्छा, अब कुछ बातें समझ में आ रही है, सुनो, कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है। सुनो, उसमें उठ वाले, उठ करे, उठो। अगर हम प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं तो मेरी एसक्यूएल क्वेरी प्रोसीजर के अंदर है, दिमाग लगा। अगर हम प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं तो एसक्यूएल क्वेरी प्रोसीजर के अंदर है और डेटा जा रही है प्रोसीजर में। यहाँ चेक हो रहा है, वो एसक्यूएल क्वेरी को दे रहा है। ये तो बिल्कुल ट्रिगर का उल्टा है। कैसे? हम यहाँ से एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं, सुना? हम यहाँ से एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं और जैसे एसक्यूएल क्वेरी लिखा, ट्रिगर कॉल हो गया। नहीं है समझ में? हम एसक्यूएल क्वेरी बाहर लिख रहे हैं और जैसे एसक्यूएल क्वेरी लिखा, ट्रिगर फायर होगा। अब बेटा वो ट्रिगर क्या करेगा? तेरी मन की बातें लेगा। अरे बोल यार, और ये कहाँ पे चेक करेगा? बोलो, टेबल में। अरे बोलो, बिफोर आफ्टर, पहले चेक करेगा टेबल में, चेक करेगा टेबल में। अगर उसको मिल गया, थप्पड़ मारेगा तेरे को। दिस रिकॉर्ड ओनली व्हाट एग्जिस्ट इन व्हाट टेबल। नहीं है समझ में? नहीं है समझ में? अरे बोलो, नहीं आया। हम इंसर्ट इनटू लिखेंगे, वहां से ट्रिगर कॉल होगा। वो ट्रिगर के बिना क्या करेगा? मेरी मन की बातों को लेगा और किसके पास जाएगा? टेबल। अच्छा, मेरी मन की बातों को लेगा तो वो कहाँ रखेगा? तो इंसर्ट इनटू टेबल में वैल्यूज है, तो पूरी एक रो है। अरे बोल यार, तो पूरी रो है, तू कहाँ रखेगा? मैजिक टेबल में रखेगा।
और उस बेटे उस टेबल का नाम क्या देगा? इंसर्टेड। नहीं है सर, फिर से बोलूं, इंसर्ट इनटू स्टार्ट वैल्यूज। देखा अंकल, अभी आप ट्रिगर को भूल जाओ। हमने कहा जी, सुना है ट्रिगर, जैसे SQL क्वेरी का इंसर्ट अपडेट डिलीट लिखते हैं, ट्रिगर फायर होता है। मतलब मैं क्या करूं, आप सब एक काम करो, आप इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज लिखो। पहले बताते हैं आपको, मतलब उल्टा पढ़ा रहे हैं, तो उल्टा पढ़ा रहे हैं। 301 कॉमा कोई नाम दे दो, संदीप दे दो, कुछ भी दे दो यार, ABC दे दो। अब ये डेटा जैसे अंकल ये लिखा, यहाँ बोलो कौन कॉल हुआ? रश्मि, यहाँ कौन कॉल हुआ? T1, एक ट्रिगर कॉल हुआ। अब बेटे इस ट्रिगर आपकी 3 डेटा को एक साथ रखेगा। अरे बोले यार, एक बेटा पूरा रो रखेगा ना, तो कहाँ रखेगा? मैजिक टेबल में। और इसके नीचे बोलो कौन है आपका? RT है, मतलब वो रियल टेबल कंपेयर होगा। भले मैजिक टेबल में गया, अरे बोले यार, भले मैजिक टेबल में गया, और मैजिक टेबल से बोलो कौन कंपेयर हुआ? बोलो रियल टेबल। अगर मिल गया तो रोल बैक ट्रांजैक्शन, अगर नहीं मिला तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज हो गया। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? नहीं आया? दिमाग लगा। मैंने कहा मैं मैथ का बंदा हूँ, मुझे नहीं आता ये सब बकवास बकवास। मैं 100 प्रोग्राम लिख दूंगा सेकंड के अंदर। बस मेरे को दिक्कत होती है लाइफ में लॉजिक बिल्ड करना। मेरी रात जो खराब होती है और चेहरा जो मेरा खराब होता है, बस लॉजिक बिल्ड करना। ये रात में जगह रहते हैं। इस साल जो चेहरा है उसको मैं 10 दिन में सुधार दूंगा, चिंता ना कर। मैं इस साल 10 दिन में लॉजिक को सुधार नहीं सकता हूँ। क्यों? चाय पीना बंद कर दूंगा, सिगरेट कम कर दूंगा, मॉर्निंग वॉक करूंगा तो ठीक हो जाएगा। और ऊपर रात में नींद लूंगा तो नींद लेता ही नहीं, मैं करूँ क्या? स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस में जो चलता है उस वाले को ठीक करता हूँ मैं पहले। और सब क्या मेरी सेकेंडरी चीज है। मैं सबको बेटा लाइफ में सेकेंडरी मांगता हूँ। मेरे एक ठीक होने से मैं अपनी तारीफ नहीं करता। कितने लोगों की जॉब लग रही है? कुछ लोग मेरे सहारे चलते हैं, जो मेरे अपने कंसर्न है। मैं बच्चों को नहीं, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरे लिए लेके मैं नोएडा में रहते हैं, उनके लिए मैं करता हूँ। ये आप मत समझो कि मैं ये बच्चे जो पढ़ा रहा हूँ सेंटर में, मैं बहुत सारे बच्चे पढ़ाता हूँ नेट से, गोटो मीटिंग से। मेरी 9 बजे वेट करते हैं, 10 बजे कभी आज को शाम में जल्दी क्लास लेता हूँ, भागता हूँ घर से, घर भागता हूँ, मैं भाई जा रहा हूँ, साइकिल निकालो मेरा। कि रात की ट्रेनिंग चलती है मेरी। ये मेरा एक ही कमाई का जरिया नहीं है। कमाई छोड़ो, मैं बहुत लोगों से जुड़ा हूँ, बात ये होती है। ये मेरी कमिटमेंट है। और उनको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अब प्रॉब्लम क्या बेटे, उनको मुझसे क्या बोलो एक्सपेक्टेशन, जो संदीप करण पढ़ाएगा वो लाजवाब पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पढ़ना पड़ता है यार। उस चढ़ाई तक खड़े हो गए हैं या पीछे रोल बैक भी नहीं हो सकते। तो मुझे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। क्या चाहती है करे? सब क्वेरी लिखो, आप क्वेरी लिखो। लिखा? क्वेरी किसके पास गया? ट्रिगर के पास। क्वेरी में क्या बेटा? रो है, रो साले कहाँ गया? ट्रिगर के पास। डार्लिंग एक कॉलम नहीं गया, एक डेटा नहीं गया, पूरा रो गया। रो बेटा क्या बोले? मैट्रिक्स है। उससे बात करना, मैट्रिक्स है। एक रो चल तो 50 रो लो या सिंगल रो लो, वो क्या बोलो? मैट्रिक्स है। वो पॉपुलेट होगा, राइट? अकॉर्डिंग ज्योमेट्री। पहले फॉर्मेट बनेगी और डेटा सिंक करेगा। 2x3 या 3x4 मैट्रिक्स, ये सिंक करेगा बेटे। ये डेटा डार्लिंग कहाँ जाएगा बोलो? किसी टेबल में जाएगा। उस टेबल का नाम बोलो कौन है? मैजिक टेबल है। और मैजिक टेबल से बोलो क्या होगा? जो आपका रियल टेबल है उससे क्या होगा बोलो? कंपैरिजन होगा। तो मैजिक टेबल तेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को तो आ गया। एरे, अरे बोलो कौन? एक रो एरे। अच्छा आप ये कर रहे हो मेरे को, क्या बोल रहे हो?
मैं ये कर रहा हूँ कि मेरी डेटा पहले मैजिक टेबल में गई, तब मुझे पहले मैजिक टेबल से दिखाओ। अगर मैजिक टेबल में बाकी अपनी डेटा पड़ी है तो वहाँ पे ज्वाइनिंग लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे बोलो? तो इस तरह 2 टेबल हो गई, एक रियल टेबल बोलो कौन? मैजिक टेबल। तो ज्वाइनिंग किसकी होगी बोलो? रियल टेबल और मैजिक टेबल। अरे बोलो यार। अब देखिए नेट से सर्च करें, ट्रिगर फॉर इंसर्ट, ट्रिगर फॉर डिलीट, ट्रिगर व्हाटएवर। अब आ जाओ, खैर और करें क्रिएट, उस ट्रिगर को हटा करें, उस ट्रिगर को हटाओ, उस ट्रिगर बना दें क्या? ड्रॉप कर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, मतलब यहाँ पे खबरदार करे तुमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा तो थप्पड़ खाओगे। ट्रिगर के स्टार्टिंग में वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो सकता। क्यों? तेरी मन की बातें कभी कहाँ जाएगी बोलो? एरे में जाएगी, मतलब मैजिक टेबल में जाएगी, नहीं असल में। अच्छा, अगर प्रोसीजर हम प्रोसीजर को हम देते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और ट्रिगर को देंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे। वो ऑटोमेटिकली बना देगा बोलो, वेरिएबल का नाम बोलो क्या देगा? मैजिक टेबल देगा, और उसका नाम देगा इंसर्टेड। क्या देगा बोलो? ये डिलीटेड। अब आ जाओ, अब यहाँ लिख ऑन क्या था? तो उस मेरे मास्टर को क्या बोला? सर आप मेरे को ट्रिगर बना के मत दिखाओ, बस आप ये दिखा दो आपकी मन की बातें उस इंसर्टेड में गई कि नहीं। अरे बोल यार, आपकी मन की बात उस इंसर्टेड के पास गई तो मैं सारे से निकाल के रियल टेबल से क्या कर लूँ बोलो? वेयर लगा के चेक कर लूँ। अरे बोलो यार, अगर मिल गई तो रोल बैक करो, नहीं तो सबमिट करो। अरे बोलो, ये समझ। तो मेरे को बेटे दिक्कत क्या है लाइफ में, मैं सारा टाइम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता हूँ, तो प्रोग्राम सारे तो लगा दूंगा आग गले में। मैं बस नेट से बस मेरे को मसाला चाहिए लॉजिक का। तो मैं डेलीगेट जैसे बोलते हो, कोई भी टॉपिक लो आप उसको बेटे 10 रात सोचो, एक रात से कुछ नहीं होगा। एक रात की पढ़ाई से एक बंदा को नोच के बाहर फेंक देगा। वो सारा पढ़ाई आपके कैंसर से भी खतरनाक है। हो गया? अच्छा, क्या लिखा? डिक्लेयर ऑफ टी। लेकिन ना मैं ट्रिगर लिख रहा हूं, मैं तो प्रोसीजर लिख रहा हूं यार। टी स्पेस वोटे याद वगैरह, ये सेलेक्ट, देखना क्या कर रहा हूं? सेलेक्ट एट ऑफ टी इक्वल टू फ्रॉम। कहां से लूंगा बोलो? वो जो मैजिक टेबल बनी है तो फ्रॉम बोलो कहां से? इंसर्टेड। अरे बोलो यार, और वहां क्या लगाते बेटा? कॉलम का नाम। अगर मैं किससे करता तो मेरी मन की बातें कहां गई? किस गधे के पास गई? अरे बोलो यार, अब कोई टेबल में ज्वाइनिंग करनी थी, ढक्कन कॉमा देके। अरे बोलो कॉमा देके सेकंड टेबल का नाम किसके लिए? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए। ये असल में फिर वेयर लगाते। अभी वेयर का मत सोच, एक टेबल को देख, फ्रॉम इंसर्टेड, और क्या लगा दिया? ऐसे टाइम पास प्रिंट बोलो एट ऑफ व्हाट टी। अभी भी टेबल से मैच नहीं करा। अरे बेटा अपने यहाँ देख रहा है, ये प्रोग्रामर का डेटा बोलो कहाँ है? मैजिक टेबल में, और ये मेरी टेबल है। ये असल में। और यहाँ तूने क्या लिखा था? इंसर्ट इनटू, वो पूरा रो कहाँ गया? अरे बोलो यार, और बाद लगाते वेयर इंसर्टेड डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू टी डॉट रोल नंबर। ये समझ। अरे बोलो यार, ये समझ में। अगर साला मिल गया तो रोल बैक ट्रांजेक्शन, ना मिला तो कमिट इंसर्ट इनटू क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा।
चलो अब देखते हैं, ये हो गया ना कंपाइल। यस, ये पैरामीटर पास किया। यस, अभी दिखाते हैं बेटा, सब खुल जाएगी, चिंता ना करो। अब क्या हो गया बंदर को? सॉरी, कॉलम का नाम क्या था? कोई और ले लो, चलो ठीक है, रहने दो। क्या लगा दी बेटा, ये गलत कर दिया ना। फ्रॉम से क्या लोगे? फ्रॉम इंसर्टेड हो तो तीन कॉलम बने हैं ना, तो कौन सा कॉलम? अरे बोलो यार। और हम अगर प्रोसीजर से करते हैं बेटा तो क्या लिखते हैं? फ्रॉम के बाद रियल टेबल का नाम लिखते हैं। कॉपी देखो ना, कुछ कराया 100 बार, नहीं आया समझ में? जिसने प्रोसीजर की प्रैक्टिस करी उसको ट्रिगर समझ में आएगा। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं क्या आता है। क्या दिखा? इंसर्ट टू क्या था? स्टार्ट 1 वैल्यूज और 308 के नाम भी तो AKS और MC दे दिया। ओ माय गॉड, नहीं है समझ में? अब सुनना, अब जो बेटा डालूंगा 308 दोबारा, साला एक्सेप्शन आ जाएगा। बोलो यार, तो फिर ट्रिगर का एक्सेप्शन नहीं आया, जो बने बनाए प्रोग्राम का एक्सेप्शन आया। तो मैं क्या करूंगा? 308 किस में गई? टी में गई। ढक्कन क्या लगा देंगे? वेयर, अरे बोला वेयर इंसर्टेड डॉट RNO इज इक्वल टू, बोलो कौन? स्टूडेंट 1 डॉट RNO। अब टी में क्या आ गया? बोलो वैल्यू आएगी। अरे बोलो, नहीं है समझ में? बात की चीज है, तुम 100 एग्जाम्पल मिल जाएगा नेट से। तुम डाल तो रखा बेटे फेसबुक के ऊपर, तो ये देखे तो डेटा पहले गया कहाँ? तो ये क्या प्रूफ कर रहा है? फ्रॉम इंसर्टेड। तो ये टेबल जो बनी उसमें आपकी रो गई, आपने वहां से रिट्रीव कर। आया समझ में? तो इसको फर्दर ट्यूजडे कैरी ऑन करेंगे, तो इसके ऊपर R&D करेंगे। अब वेयर लगाएंगे, ज्वाइनिंग लगाएंगे, रेफरेंस इंटीग्रिटी, जो कौन सा सिखा दो सब।